پیارے دوستوں، ایک حافظہ لڑکی کی شادی ایک بندر سے ہو گئی اور اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس پوری کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چودھری صاحب رہتے تھے۔ وہ نیک دل انسان تھے اور اپنی دولت پر کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ ان کی 3 بیویاں تھیں، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اولاد نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے اولاد کی چاہت میں ایک کے بعد ایک 3 شادیاں کیں، لیکن پھر بھی انہیں اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اکثر سوچتے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی میری تینوں بیویوں کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ پریشان رہتے کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میری دولت کا کیا ہوگا اور میری نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ ایک دن پڑوس کے گاؤں سے ایک کسان چودھری صاحب کے پاس کام کے سلسلے میں آیا۔ بات چیت کے دوران چودھری صاحب نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ کسان نے کہا، چودھری صاحب، پاس کے گاؤں میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں۔ وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور اولاد کے لیے ان کی دعا بہت اثردار مانی جاتی ہے۔ ان کے آنگن میں ایک بڑا پھلدار پیڑ ہے۔ وہ اس پیڑ سے پھل توڑ کر اس پر دعا پڑھتے ہیں اور جو لوگ اس پھل کو کھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ بھی ایک بار وہاں جا کر ان سے ملیں۔ یقین مانیے، آپ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر چودھری صاحب بہت خوش ہوئے۔ اگلے ہی دن وہ اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی اور جھوپڑی کے پاس ایک وشال پھلدار پیڑ لگا ہوا تھا۔ چودھری صاحب جھوپڑی میں گئے تو دیکھا کہ ایک اللہ والے بزرگ تسبیح لیے عبادت میں مشغول تھے۔ چودھری صاحب ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنی پریشانی بتائی۔ بزرگ نے ان کی بات دھیان سے سنی اور پھر اس پیڑ کے پاس جا کر 3 پھل توڑے۔ انہوں نے پھل چودھری صاحب کو دیتے ہوئے کہا، ان پھلوں کو اپنی تینوں بیویوں کو ایک ایک کر کے کھلا دو۔ انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ چودھری صاحب بے حد خوش ہو کر گھر لوٹے۔ انہوں نے تینوں پھلوں کو اپنی بیویوں کو دیا۔ 2 بیویوں نے وہ پھل ترنت کھا لیا، لیکن تیسری بیوی نے پھل سنبھال کر رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اسی بیچ کہیں سے ایک بندر گھر میں آ گیا۔ وہ اس پھل تک پہنچا اور اسے چاٹ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیسری بیوی نے وہی پھل اٹھا کر ایسے ہی کھا لیا۔ اللہ کے حکم سے وہ تینوں بیویاں 1 مہینے کے بھیتر گربھوتی ہو گئی۔ 9 مہینے کا سمے گزر گیا اور 2 بیویوں کے گھر خوبصورت بیٹوں نے جنم لیا، لیکن تیسری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جو شکل صورت میں ایک بندر جیسا دکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر چودھری صاحب بے حد پریشان ہوئے اور ترنت اس اللہ والے بزرگ کے پاس گئے۔ چودھری نے بزرگ سے کہا، میری 2 بیویوں کے گھر تو اچھے اور خوبصورت بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن تیسری بیوی نے ایسا عجیب سا بچہ کیوں پیدا کیا؟ بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ پھر آنکھیں کھول کر بولے، تمہاری تیسری بیوی نے وہ پھل کھایا تھا جسے ایک بندر نے جھوٹا کر دیا تھا، اسی وجہ سے اس کا بیٹا ایسا پیدا ہوا۔ حالانکہ یہ بچہ شکل صورت میں بھلے ہی عجیب لگے، لیکن وہ بہت بدھیمان اور سمجھدار ہوگا۔ یہ سن کر چودھری صاحب بھاری دل سے گھر لوٹ آئے۔ گاؤں والوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ لوگ اسے کبھی اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ سب اسے بندر بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ چودھری صاحب کے بڑے اور منجھلے بیٹے بچپن سے ہی چھوٹے بھائی کو اپنے سے الگ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سمے بیتا اور تینوں بیٹے جوان ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا اب بھی بندر جیسا دکھتا تھا۔ ایک دن چودھری صاحب نے طے کیا کہ وہ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو نوکری کی تلاش میں بھیجیں گے تاکہ وہ محنت کر کے اپنی پہچان بنا سکیں۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو گھر پر رہنے کے لیے کہا، لیکن باندھا بیٹا ضد کرنے لگا۔ اس نے کہا، ابا، میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، مجھے بھی نوکری کے لیے جانے دیجیے۔ چودھری صاحب نے کہا، بیٹا، تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تمہیں کوئی کام پر نہیں رکھے گا۔ لیکن بندر بیٹا اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخرکار چودھری صاحب نے اس کی ضد مان لی اور تینوں بھائیوں کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ تینوں بھائی سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں بہت تیز دھوپ تھی اور گرمی کے کارن سب کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر بڑے بھائیوں کو ناریل کا ایک پیڑ دکھائی دیا، لیکن سمسیا یہ تھی کہ وہ دونوں پیڑ پر چڑھنا نہیں جانتے۔ انہوں نے کافی کوشش کی،
लेकिन नारियल तोड़ने में नाकाम रहे। बड़ा भाई बोला, अगर हमारा बंदर भाई यहाँ होता तो वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता। तभी पीछे से आवाज आई, भाई मैं तो यही हूँ। दोनों भाइयों ने मुड़कर देखा तो बंदर बेटा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बंदर बेटा फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और कई नारियल नीचे गिराए। तीनों ने नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। बड़े भाइयों ने छोटे भाई का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तीनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक और पेड़ मिला, लेकिन इस पेड़ पर बड़े बड़े कांटे थे। कांटों की वजह से बड़े भाई पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन दोनों को एक बार फिर से अपने बंदर भाई की जरूरत पड़ गई। अब वह दोनों उस पर शर्मिंदा हो रहे थे कि हम दोनों को एक बंदर की जरूरत पड़ रही है। अब वह दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर उन दोनों ने अपने बंदर भाई से मदद ली और कहने लगे, भाई हमको भूख लगी है क्या? तुम हमारे लिए कुछ भेड़ उतार सकते हो? बंदर तो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था। एक बार फिर उसने जल्दी से उन दोनों को काफी ज्यादा बेर उतार कर दिए, जिससे उन दोनों भाइयों ने पेट भरकर खाया। सुबह से लगातार चलने की वजह से उनको काफी थकावट हो गई थी। एक दरख्त के नीचे तीनों सो गए। दोनों भाइयों ने अपने बंदर भाई की मदद तो ली थी, मगर फिर भी यह दोनों बंदर भाई को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। जब बंदर की आंख खुली उसने देखा कि इन दोनों के भाई उसको छोड़कर जा चुके हैं, तो यह देखकर उस बंदर को अपने भाइयों पर बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। बंदर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म को देखकर सब लोग मुझे छोड़ जाते हैं। मैं भी तो तेरा ही बनाया हुआ बंदा हूँ। कोई भी मुझे पसंद क्यों नहीं करता? फिर भी वह अपने आप को दिलासा देते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा और दूसरे इलाके में चला गया। बड़े भाइयों को तो किसी बड़े रईस के यहाँ काम मिल गया। बंदर भी अपने लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। किसी ने उसको नौकरी पर ना रखा क्योंकि ये देखने में बहुत छोटा था। फिर बंदर भाई किसी व्यापारी के पास गया और कहने लगा, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हो? आप मुझे जो काम कहोगे मैं करूँगा। वह आदमी कहने लगा, तुम काम करने का क्या लोगे? तो बंदर कहने लगा, मैं मुफ्त में आपका काम करूँगा। वह रईस आदमी बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मुफ्त में काम करने वाला कोई नहीं होता। फिर भी उसने उस बंदर को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लिया। रईस आदमी ने बंदर को बताया कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे अपने बेटे की खिदमत के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि उसकी खिदमत के साथ साथ उसकी देखभाल करे और उसको समझा भी सके। दूसरे दिन रईस आदमी ने बंदर को अपने बेटे की खिदमत कैसे करनी है सब कुछ समझा दिया। अब रईस आदमी बहुत खुश था। रईस आदमी के बेटे ने बंदर को बहुत तंग किया। रईस आदमी का बेटा बहुत शरारती था। उसने बंदर को बहुत दोहराया, इतना दोहराया कि बंदर बेचारा छत से गिर गया और उसके सर से खून निकल आया। जब रात को रईस आदमी वापस आया तो नेवले ने उस रईस आदमी को उसके बेटे के करतूत बताए। तो रईस हाथ पर हाथ मारकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। कहने लगा, मेरा बेटा ऐसा ही है। इसकी खिदमत के लिए बहुत सारे नौकर रखे हैं, मगर कोई भी नौकर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर नेवले ने उस लड़के की बहुत खिदमत की। उस लड़के का हर नाज नखरा उठाया। बस बदले में वह लड़का उसके साथ बहुत ही खराब सलूक करता था। रईस आदमी का भी नेवले बेटे के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं था, ना ही उसको ठीक से कुछ खाने को मिलता था। जब शाम को रईस आदमी घर आता तो उसका बेटा अपने बाप को उसकी शिकायत लगाता, तो रईस आदमी सुनकर बंदर को बहुत डांटता था। बंदर बहुत ज्यादा दुखी होता, वह बहुत ज्यादा रोता। सोचने लगा कि मैं जिसके साथ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ वह उल्टा मुझे ही खड़ी खोटी सुना देता है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि भागने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपना हिसाब बराबर करना होगा, जैसे को तैसा करना ही होगा। बंदर ने देखा कि रईस आदमी बेईमानी, लालच और 2 नंबर के काम करके लोगों को लूटता है। इस तरह करके उस रईस आदमी ने बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है। अब उस बंदर आदमी ने एक तरकीब सोची और आहिस्ता आहिस्ता उस बंदर ने लड़के को अपने काबू में कर लिया। अब उस लड़के की शैतानी बंदर के सामने नहीं चलने वाली थी। अब उस रईस आदमी को सबक सिखाना ही था। रईस आदमी घर से बाहर जाता तो जब उसके बेटे को भूख प्यास लगती
तो उसी भूख प्यास को नेवले भाई ने अपना हथियार बना लिया। जब वह खाना मांगता तो बंदर कहता कि अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें पानी पीने नहीं दूंगा, अगर पानी पिया तो तुम्हें खाना खाने को नहीं दूंगा। यह सब तुम्हें तभी खाने को दूंगा जब तुम मुझे अपने बाप का जमा किया हुआ पैसा मुझे बताओगे कहाँ रखा है। लड़के ने सोच समझ के सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसे तेज भूख लगी हुई थी। वहां नेवले ने काफी ज्यादा पैसे निकाले। उस रईस आदमी के घर में एक सूखी सड़ी हुई गाय बंधी हुई थी। बंदर ने पैसे आटे में मिलाकर उस गाय को खिला दिए। बंदर भाई रोज ही ऐसा करने लगा। जब भी वह लड़का खाना मांगता तो रईस आदमी ने कई कई जगह पैसे छुपा कर रखे थे। जैसे जैसे उसका बेटा उसको बताता जाता, वह सब कुछ जमा करके उस गाय को खिला देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, यहाँ तक कि उसको बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिले और उसी गाय को खिला दिए। जब आहिस्ता आहिस्ता नेवले ने उस रईस आदमी की सारी रकम उस गाय को खिला दी तो उसने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। पैसा बहुत जमा हो चुका है। सबसे पहले उसने अपने भाइयों को उस इलाके में तलाश किया। अपने भाइयों से कहने लगा कि भाई अब हमें घर जाना चाहिए, हमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है, अब घर वाले हमें याद करते होंगे। उन दोनों भाइयों को बंदर की पहली बार कोई बात अच्छी लगी। वह कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उन सब ने अपना अपना सामान बांध लिया। वो दोनों भाई अब अपने मालिक से इजाजत लेने गए। उधर बंदर भाई भी रईस आदमी के पास आया और जाकर कहने लगा, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगा। रईस आदमी कहने लगा, तुम्हारे जाने का मुझे भी बहुत दुख है। खैर, जाने से पहले जो मांगना है मांग लो, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। बंदर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जो सुखी हुई गाय बैठी हुई है वह मुझे दे दो। रईस आदमी ने खुशी खुशी वह गाय बंदर को दे दी, क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं थी, उल्टा उस गाय की देखभाल करना पड़ती थी। अब उससे भी जान छूट गई। नेवला भाई खुशी खुशी वह गाय लेकर अपनी भाइयों के साथ चल पड़ा। तीनों भाई घर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन दोनों भाइयों ने नेवले का खूब मजाक उड़ाया। कहने लगे, इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने एक गाय ही खरीदी है। वह भी बंदर भाई, जरा दरख्त के ऊपर चढ़ जा और हमको बेर तोड़ कर दो ताकि हम लोग अपना पेट भर सके। बंदर भाई ने हाँ में सर हिलाया और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बंदर भाई अपनी भाइयों को समझ चुका था और उसके साथ कैसा सलूक करते हैं ये भी वो समझ गया था। तो उसने मोटे और पके हुए बेर खुद खाए और कच्चे कच्चे बेर अपने भाइयों के लिए फेंकता रहा। दोनों भाई देखकर हैरान हुए कि बंदर भाई बहुत बदल गया है। ऐसे ही रास्ते में कई फलदार दरख्त उनको मिले। बंदर झट से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता, अपना पेट भरकर फल खाता और अपनी गाय को भी खूब खिलाता। अब गाय भी बंदर के साथ बहुत खुश थी। अब बंदर बड़े मजे के साथ गाय के ऊपर बैठकर चल रहा था। दोनों भाई बड़े पैदल चल रहे थे, लेकिन बंदर भाई उनके आगे आगे अपनी गाय के ऊपर था। दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया, सबसे पहले बंदर के घर चलेंगे, देखें तो सही कि आखिर इसने क्या कमाया है। अब यह तीनों अपने गांव पहुंच चुके थे। जब अपने घर आए तो उनके घर वाले और गांव वाले लोग उनको देखने के लिए जमा थे। क्योंकि इन तीनों की माएं अलग अलग थीं, इसलिए इसके बाप ने इन तीनों के लिए घर भी अलग अलग लग बना कर दिए ताकि कोई भी एक दूसरे से लड़ाई ना कर सके। चौधरी अपनी तीनों बीवियों को एक जैसी मोहब्बत और एक जैसी ही इज्जत देता है। पहले तीनों भाई अपने अपने घर में दाखिल हुए। जब बंदर अपनी गाय को लेकर साथ में अपने घर दाखिल हुआ तो गांव के लोग हंसने लगे, कहने लगे, देखो देखो बंदर भाई क्या लाया है। बंदर ने उन सबको नजरअंदाज करके गाय को अपने सहन में जाकर एक जगह पर बांध दिया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ जल्दी से घर को साफ करो और कुछ हाफिज कुरान बच्चे कुरान की तिलावत के लिए अपने घर में बुलाओ और एक डंडा भी लेकर आना। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन बंदर बार बार एक ही बात कर रहा था। उसकी माँ कहने लगी, डंडा, कुरान की तिलावत, बच्चे, यह सब बेटा तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से कहने लगा कि माँ घर को साफ करो, कुरान की तिलावत के लिए हाफिज कुरान बच्चे बुलाओ और एक डंडा भी लेकर आना।
मोहल्ले के लोग बंदर की माँ को कहने लगे, एक बार अपने बेटे की बात मानकर तो देखो, ये करना क्या चाहता है। बंदर के हुक्म से घर को अच्छी तरह साफ किया गया। फिर कुछ हाफिज कुरान बच्चों को कुरान की तिलावत के लिए बुलाया गया और एक मजबूत डंडा भी लाया गया। अब बच्चों ने कुरान की तिलावत शुरू की तो नेवला कहने लगा, बच्चों एक साथ ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत करो। तो बच्चों ने ऐसा ही किया। नेवले भाई ने गाय को 2 डंडे मारे तो गाय ने देखते ही देखते सोने के काफी सिक्के निकालना शुरू कर दिए। यह देखकर पहले तो लोग हैरान हुए, फिर उसके बाद अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दिया। जब वह सोने के सिक्के निकलने बंद हो गए तो बंदर कहने लगा कि बच्चों मजीद कुरान की तिलावत जारी रखो। इस बार बंदर ने गाय को 4 डंडे मारे तो गाय ने और तेज रफ्तार के साथ बहुत सारा पैसा और सोना निकालना शुरू कर दिया। अब सब लोग उस सूखी हुई गाय को नेक गाय, सोना देने वाली गाय समझने लगे। अब लोगों ने उन दोनों भाइयों से पूछा कि आप लोग क्या कमा कर लाए हो। उन दोनों भाइयों ने अपनी कमाई की रकम दिखाई, मगर बंदर भाई के सामने उनकी रकम कुछ भी नहीं थी। पैसे निकालने वाली गाय को देखकर उन दोनों भाइयों के दिल में लालच आ गया। उन्होंने बंदर भाई से ये गाय खरीदने का इरादा किया। बंदर भाई ने कहा कि मैं आप पैसे निकालने वाली गाय को तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मैं उसके बदले आपकी कमाई हुई सारी रकम लूंगा। अब दोनों भाई ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे, पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे जब हमारे पास वह नेक गाय आएगी। उन्होंने अपने सारे कमाए हुए पैसे अपने छोटे भाई बंदर को दे दिए और उससे वह नेक गाय खरीद ली। वह दोनों भाई उस गाय को लेकर अपने घर गए और ठीक इसी तरीके से उन्होंने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत के लिए बुलाया और एक डंडे के साथ उस गाय को मारना शुरू कर दिया। उस गाय की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और दोनों भाइयों ने एक एक डंडे के साथ उस गाय को डंडे लगाए, मगर उस गाय ने सिर्फ एक ही सोने का सिक्का निकाला। ये देखकर उन्होंने गाय को और मारना शुरू किया और मजीद कुरान की तिलावत करवाने लगे, मगर उनको एक सिक्के के अलावा और कुछ भी हासिल ना हुआ। वह बेचारी गाय मार खा खाकर वहीं सहन में गिर गई और यह दोनों भाई अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब वह दोनों भाई उस गाय को लेकर अपने नेवले भाई के पास गए और जाकर कहने लगे, यह रही तुम्हारी गाय, तुम ही संभालो उसको, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह दोनों उस गाय को छोड़कर वापस अपने घर चले गए। बंदर इस गाय की खूब खातिर खिदमत करता था। अब यह गाय उसके पास रहती। अब जब कभी बंदर ने कहीं जाना होता तो वह उस गाय के ऊपर बैठ ही जाता। बंदर गाय को खूब अच्छे से चारा डालता, पर खिलाता, उसके बाद उसकी खिदमत भी करता था। अब गाय खूब मोटी हो चुकी थी। वह बंदर अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह बंदर भाई अपनी जिंदगी में मस्त रहता और लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बंदर के दोनों बड़े भाई अच्छी नौकरियां करने लगे और खूब पैसा कमाया। चौधरी साहब ने सोचा कि अब उनके दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। जब अच्छे रिश्ते आए तो बड़े भाइयों की शादी हो गई, लेकिन बंदर अब भी कुंवारा था। दोनों भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, बंदर तो किसी गद्दी से ही शादी करेगा। चौधरी साहब और बंदर की माँ को अब छोटे बेटे की शादी की फिक्र होने लगी, क्योंकि उसकी उम्र भी शादी की हो चुकी थी। दूसरी तरफ बंदर की माँ बुढ़ापे के कारण बीमार रहने लगी। उनके हाथ पांव कमजोर हो गए थे, मगर फिर भी वह घर का सारा काम करती थी। कुछ समय बाद बंदर की माँ को तेज बुखार हो गया और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। अब घर का सारा काम और खाना पकाने की जिम्मेदारी बंदर के सिर आ गई। उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन जैसे तैसे वह कुछ बनाता और माँ के साथ खा लेता। बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों से बंदर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मदद करेंगे। माँ की हालत और बिगड़ती गई। एक रात बंदर ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वह जल गया। उस दिन बंदर और उसकी माँ को भूखा ही सोना पड़ा। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। बंदर उठा और समझा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। उसने सारा घर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से साफ सुथरा था। किचन में लजीज खाना तैयार रखा था
यह देखकर बंदर हैरान रह गया। उसने सबसे पहले वह खाना अपनी माँ को खिलाया और खुद भी खाया। उसने सोचा, पता नहीं ये सब किसको। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।